Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Vivara. Gopi Jana Vallabha Vivara. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Sodanandana Braja Janarandana Yasodanandana Braja Janarandana Jamnatira Vanachari Jamnatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Vivara. Gopi Jana Vallabha Vivara. Sodanandana Braja Janarandana Jamnatira Vanachari Jamnatira Vanachari Gopi Jana Vallabha Vallabha Sodanandana Braja Janarandana Sodanandana Braja Janarandana
Ramatiya Anachari Ramatiya Anachari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Gaur Nitai, Gaur Nitai, Gaur Nitai, Jai Gaur Nitai. Jai Radha, Padmati Radha, Padmati Radha. Jai Sita Ram Lakshmana, Sita Ram Lakshmana. Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Jai Om Vishnupad Brahmansa Parivijaya Jivangeshwar Abhechanam Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj ki Samgatani Agya ki Transcendental Book Distribution Marathon ki. All glory to the Samadhi. All glory to Samadhi. All glory to Samadhi. All glory to
श्री गुरु श्री गौरांग। आज के लेक्चर का विषय है ग्रंथों का वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम चैतन्य चरितमृत के 2-3 श्लोक पढ़ेंगे और फिर प्रवचन। चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला 3रा अध्याय श्लोक 51। इहा सबार कोन मते हईबे निस्तार, ताहार हेतु न देखिए ये दुख है अपार। इहा सबार कोन मते हईबे निस्तार, ताहार हेतु न देखिए ये दुख है अपार। इहा सबार कोन मते हईबे निस्तार, ताहार हेतु न देखिए ये दुख है अपार। माता जी अनुवाद। शब्दार्थ है इहा सबार, इन सभी यवनों का कौन मते किस विधि से हईबे निस्तार उद्धार होगा। ताहार हेतु ऐसे उद्धार का कारण ना देखिए, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ये दुख अपार, यह मेरा महान दुख है। अनुवाद मेरे पीछे बोले। इन यवनों का उद्धार किस तरह होगा, मुझे महान दुख है कि मुझे इसका कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। ये श्लोक पतित पावन के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य की महत्ता को प्रकट करने वाला है। शिला नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, पतित पावन हेतु तब अवतार। हे प्रभु, आप सारे पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। मोर सम पतित प्रभु न पाई बे आर, और इन समस्त पतित आत्माओं में मैं सबसे अधम हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किस तरह पतित आत्माओं के उद्धार के बारे में सदैव चिंतित रहते थे, ये इस कथन से प्रदर्शित होता है। ये दुख अपार, यही मेरा महान दुख है। ये कथन बतलाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, किस तरह भौतिक जगत में पतित आत्माओं को देखकर सदैव दुखी रहते हैं। इसलिए वे अपने मूल रूप में या श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त बनकर पतित आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण प्रेम प्रदान करने आते हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं कि वे न केवल कृष्ण का ज्ञान प्रदान करते हैं, अपितु अपने व्यावहारिक आचरण से हर एक को कृष्ण से प्रेम करना भी सिखाते हैं। कृष्ण प्रेम प्रदायते। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के
चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, उन्हें महाप्रभु के आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए। इस कलयुग में लोग क्रमशः पशुओं से भी बदतर होते जा रहे हैं। यद्यपि वे गौओं का मांस खा रहे हैं तथा ब्राह्मण संस्कृति से द्वेष रखते हैं, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ये विचार कर रहे हैं कि उन्हें जीवन की भयावह स्थिति से किस प्रकार उबारा जाए। इस तरह वे सारे भारतीयों को अपने आंदोलन को ग्रहण करने का आदेश देते हैं। भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसने भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लिया है उसे अपना जीवन सफल करना चाहिए और अन्य लोगों के लाभ हेतु कार्य करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9:41। इसलिए प्रत्येक उन्नत तथा सभ्य भारतीय का धर्म है कि वो इस कार्य को गंभीरता से ले। सारे भारतीयों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति में यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए, तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सच्चे अनुयायी माने जाएंगे। दुर्भाग्यवश कुछ तथाकथित वैष्णव तक ईर्ष्यावश इस आंदोलन के साथ सहयोग करने से मना तो करते ही हैं, साथ ही अनेक प्रकार से इसकी निंदा भी करते हैं। हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लोग हम में दोष निकालते हैं क्योंकि वे हमारे कार्यों से अनावश्यक ईर्ष्या करते हैं। यद्यपि हम यवनों तथा म्लेच्छों के देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे यवन तथा म्लेच्छ हमारे पास आते हैं और शुद्ध वैष्णव बनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं। स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी मानने वाले व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह विचार करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा है, यह सवार कौन मते हाईवे निस्तार, इन सारे यवनों का उद्धार किस तरह होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए सदैव चिंतित रहते थे, क्योंकि उनकी पतित अवस्था से उन्हें महान दुख होता था। इसी स्तर पर श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार किया जा सकता है। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानस्मरणस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापयामि। जय श्री कृष्ण जी। हरे कृष्ण हरे Somebody translating for these ladies there. जैसे आप जानते हैं हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन कब से शुरू कर रहे हैं? 5 तारीख से। तो हमारे शास्त्रों में प्रचार की सेवा को बड़ा महत्व दिया है। आपने जो श्लोक सुना, इस श्लोक का उच्चारण परम भगवान कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु रोज हरिदास ठाकुर को मिलने जाते थे, क्योंकि हरिदास वैसे तो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, पर वो प्रकट हुए थे मुसलमान खानदान में, और उन दिनों में बड़ा कड़क रिवाज था कि अगर आप हिंदू खानदान में जन्म नहीं लिया हो तो आप अंदर मंदिर के प्रवेश नहीं कर सकते। और हरिदास ठाकुर को मिलने रोज महाप्रभु जाते थे। महाप्रभु ने कहा, क्या कहा, हरिदास इतने यावन हैं, उनका उद्धार कैसे होगा। मैं तो अत्यंत दुखी हूँ इन पतितों को देखकर। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवत चैतन्य महाप्रभु अनेक अवतारों में सबसे दयालु अवतार है। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं,
पतित पावन हेतु तब अवतारा। आप प्रकट हुए हो किस लिए? किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। और इस कलयुग में सब पतित हैं या नहीं? सब ब्राह्मण हैं। कलो शूद्र संभव। भारत में हम ये कहते रहते हैं ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का है। और शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो सभी नीची जाति के हैं। कलो शूद्र संभव। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कैसे नियामनों का उद्धार होगा? महाप्रभु प्रकट हुए हैं पतितों का उद्धार करने के लिए। और अनेक अवतारों में महाप्रभु को सबसे दयालु अवतार माना जाता है। आगे जाकर प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक और श्लोक का वर्णन करते हैं। भारत भूमि में रहेगा। जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म ले उसे क्या करना चाहिए? उसे ये सोचना चाहिए कि दूसरों का उद्धार कैसे हो सकता है। हमारे शास्त्रों में अनेक श्लोक हैं जहाँ की इस भाव को प्रकट किया गया है। ये एक ही श्लोक नहीं, भागवतम में भी अनेक श्लोक हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भारत भूमि में जो जन्म ले उसे ये सोचना है अपना उद्धार कैसे होगा और दूसरों का उद्धार कैसे होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, जब उन्होंने देखा कि समाज की प्रजा यावनों से बढ़ गई है तो उनके मन में यही भाव था कैसे इनका उद्धार होए। ये है भक्तों का भाव। ये भाव प्रहलाद महाराज भी प्रकट करते हैं। और इसी भाव के साथ श्रील प्रभुपाद 70 साल की आयु में वृंदावन की सुविधा छोड़कर ऐसे स्थान में गए जहाँ की उनका कोई जान पहचान नहीं था, पर उनके मन में एक ही भाव था पतितों का उद्धार। तो वैष्णव को कहा जाता है परा दुखा दुखी। दूसरों को दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाता है। तो आप कहोगे हम तो सुखी हैं, बड़ी मोटर है, बड़ा मकान है, हर प्रकार की सुविधा है। सुखी वो व्यक्ति है जो भगवान के साथ जुड़ा है सेवा में। और बाकी हैं वो अनाथ हैं, ये स्वीकार नहीं करते। ये शास्त्रों में है। अनाथ किसे कहते हैं? वो नहीं जिसके माता पिता ना हो, वो जिसे भगवान की शिक्षा को स्वीकार नहीं कर रहा हो। तो प्रचार की सेवा, ये भाव कि हमने पतितों का उद्धार करना है, ये वैष्णव में होना चाहिए। भगवान कपिलदेव ने तीसरे स्कंद में वैष्णव के गुणों का वर्णन किया। कपिलदेव की माता ने पूछा कैसे पहचाना जाए साधु कौन है? उन्होंने क्या कहा? तितिक्षुवा करुणी कहा सूरदा सर्वदहीनम विजित सत्व संता साधु साधु पूछना। अनेक गुणों में एक गुण है दया की भावना। तो दो प्रकार की दया हो सकती है, एक है भौतिक, एक है आध्यात्मिक। तो भौतिक दया का अर्थ है गरीब व्यक्ति है अब दान दे दो, अंधा व्यक्ति है ऑपरेशन करा दो। और आध्यात्मिक दृष्टि से प्रयास करो ज्ञान देने के लिए। चैतन्य चरितमृता में वासुदेव विप्र की कथा पढ़ते हो। वासुदेव विप्र को कोढ़ की बीमारी थी। वो इतने दयालु थे कि उनका शरीर कीड़ों से भरा हुआ था। जब भी वो इतने दयालु थे, जब कोई कीड़ा घिरता भी था उसे उठाकर शरीर के साथ जोड़ देते थे।
तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे और कुर्मा ब्राह्मण के घर में निवास कर रहे थे। वहाँ चैतन्य महाप्रभु जब चले तो वासुदेव विप्र को सूचना मिली। उन्होंने सोचा कि शायद महाप्रभु हैं अभी भी कुर्मा के घर में। पर जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि महाप्रभु चल पड़े हैं। अत्यंत शोक में था। महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, अंतर्यामी। उन्हें पता लग गया कि वासुदेव विप्र शोक में है। तो महाप्रभु जब लौटे और उसे गले लगाया। जैसे ही गले लगाया वासुदेव विप्र का तो कोढ़ से भरा हुआ शरीर था, वो बीमारी तुरंत ही समाप्त हो गई। वो खूबसूरत युवक बन गया। फिर उन्होंने उन श्लोकों की रचना की जो कि सिद्धावा ब्राह्मण ने 10वें स्कंद में की थी। सिद्धावा ब्राह्मण भगवान के मित्र थे। उन्होंने मिलने गए थे द्वारका में। गए थे, पति ने भेजा था इस भावना के साथ कि कुछ लाभ प्राप्त हो। कुछ मांगे बगैर वो लौट गए। पर जब लौटे उन्होंने क्या देखा, कुटिया की बजाय उनका घर महल बन गया था। उन्होंने बड़े सुंदर स्तुतियों से परम भगवान का गुणगान किया। तो उसने वासुदेव विप्र ने बड़े सुंदर उन्हीं श्लोकों का उच्चारण किया। और फिर उन्होंने पूछा महाप्रभु से, पहले तो मुझे इतनी गहरी कोढ़ की बीमारी थी, कोई मेरे निकट आता भी नहीं था। मेरे शरीर से इतनी बदबू आती थी। पर अब आपकी कृपा से मैं खूबसूरत युवक बन गया हूँ। मुझे डर है कि मैं घमंडी नहीं बन जाऊँ। यहाँ की जब व्यक्ति अत्यंत खूबसूरत, ज्ञानी, धनी इत्यादि बनता है तो घमंडित भी बन जाता है। महाप्रभु ने कहा सदा हरि नाम का उच्चारण करो और हरि नाम की महिमा का प्रचार करो। और अगर ये दो कार्य करोगे तो सदा निर्मलता का भाव होगा और तुम सदा मेरे साथ निवास करोगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं जिस प्रकार वासुदेव विप्र का उद्धार हुआ उसी प्रकार इस संस्था के अनेक भक्तों का उद्धार हुआ है। तो सबका कर्तव्य बनता है क्या कि हम क्या करें, उच्चारण करें और प्रचार करें। तो ये जो प्रचार की सेवा है इसके विषय में अनेक वर्णन है शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में। पर हमारे आचार्यों ने इस सेवा को बहुत ही बल दिया। मैं आपको पढ़कर 2-3 कोट्स भी सुनाऊंगा प्रभुपाद के कि कई बार भक्तों के मन में ये भाव आता है क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हरि नाम या शास्त्रों का वितरण, ये क्या सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। तो इस विषय में प्रभुपाद जी के बड़े अच्छे कोट्स हैं। तो प्रभुपाद जी ने भी इस विषय पर बोल दिया। भक्ति सिद्धांत जी प्रभुपाद जी को मिले थे राधा कुंड में, जबकि प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत जी ब्रजमंडल परिक्रम कर रहे थे। और जैसे आप जानते हो उन्होंने कागज पेन से लेकर क्या खींचा, मृदंगा की तस्वीर, और कहा अगर भगवान तुम्हें सुविधा दें तो ग्रंथों का क्या करना, प्रकाशित करना और वितरण करना। तो प्रभुपाद जी ने ये आदेश प्रभुपाद जी को दिया गया था 1935 में। तो 1935 में
भक्ति सिद्धांत जी ने ये आदेश दिया और 1944 में प्रभुपाद जी ने केस पत्रिका की स्थापना की, बैक टू गॉड है, और आस्ते आस्ते ग्रंथों का प्रकाशन और वितरण प्रभुपाद जी बढ़ाते गए। भक्ति सिद्धांत जी ने भी इस सेवा पर बल दिया था। और भक्ति विनोद ठाकुर वो पहले महान आचार्य थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रचार आरंभ किया। भक्ति विनोद ठाकुर उस समय समाज में उनका काफी ऊंचा पद था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उन दिनों में अंग्रेजों का राज था और भारतीयों को इससे ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। और भक्ति विनोद ठाकुर ने अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन के ऊपर, जो कि उन्होंने कहाँ भेजा, विश्व के अनेक महाविद्यालयों में। वो पहले महान संत थे जिन्होंने प्रयास किया चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को सत्य बनाने के लिए। क्या थी महाप्रभु की भविष्यवाणी? विश्व के हर नगर और कुल में यह नाम पहुंचेगा। भक्ति विनोद ठाकुर को पूरा विश्वास था ये भविष्यवाणी सफल होगी। और प्रभुपाद जी ने कहा, he was virtually the founder of the Krishna conscious movement, भक्ति विनोद ठाकुर। उनके प्रतिनिधि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी इस विषय पर बल दिया और उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस खोले और उनके शिष्य जाते थे ग्रंथों को बांटने के लिए। 4-5 ग्रंथ बांट के आते थे, वो बड़े खुश होते थे। और उन्होंने प्रभुपाद जी को ये आदेश दिया, ग्रंथों का प्रकाशन और वितरण। तो प्रभुपाद जी ने इस सेवा को बड़ी गंभीरता से स्वीकार किया। प्रभुपाद जी भागवतम के प्रथम स्कंद को डेडिकेट करते हैं उनके गुरु महाराज को और कहते हैं, He lives forever by his divine instructions and the follower lives with him. जो गुरु है जीवित रहता है उनके दिव्य वाणी के द्वारा और शिष्य उनके साथ रहता है। तो प्रभुपाद जी ने भी इस आदेश का पालन किया। आप जानते हो कि किस प्रकार प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में निवास करते थे। 3rd क्लास डब्बे में दिल्ली आते थे और पुराने दिल्ली स्टेशन में उतरकर छिबीवाड़ा जाते थे ग्रंथों को बांटने के लिए, प्रकाशन करने के लिए। उसके पश्चात स्वयं जाते थे ग्रंथों को बांटने के लिए। 1 man army, ग्रंथों का अनुवाद करना। और अनुवाद के लिए प्रभुपाद जी के पास एक पुराना टाइपराइटर था, बहुत पुराना, जिसके ऊपर वो टाइप करते थे। अनुवाद करना, फिर उनको छपाना, फिर वितरण करना, चंदा इकट्ठा करना, ये कोई आसान काम नहीं है। और प्रभुपाद जी ने किया, क्यों? क्योंकि ये था उनके गुरु का आदेश। और प्रभुपाद जी दिल्ली की लाइब्रेरीज में जाते थे। कई बार मैंने सोचा कि हमें लाइब्रेरी प्रोग्राम फिर से शुरू करना चाहिए। कि प्रभुपाद खुद जाते थे लाइब्रेरीज में इन ग्रंथों को बांटने के लिए। जब प्रभुपाद जी पश्चिम देशों में पहुंचे, जब प्रभुपाद जी भारत से अमेरिका गए, जलादू जहाज में
जहाज में भी प्रभुपाद जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। भागवतम प्रभुपाद जी अपने साथ ले गए थे, श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, तो वो उन्होंने बेचा कैप्टन पांडे को $25 में। प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे $30 के साथ, $5 भारत से ले गए थे और 20 और $25 की उन्होंने किताबें बेची जहाज में। तो प्रभुपाद जी जब भी मौका मिलता था ग्रंथों को बांटते थे, और वो बड़ी प्रसिद्ध कथा है, शायद आपने पहले भी सुनी होगी। एक समय प्रभुपाद जी कनॉट प्लेस में बांट रहे थे बैक टू गॉडेड। मेरे ख्याल से कनॉट प्लेस में अभी भी वो कॉफ़ी हाउस है, नहीं है? प्रभुपाद जी उस कॉफ़ी हाउस में जाते थे कुछ पीने के लिए नहीं, और बैक टू गॉडेड बांटने के लिए कॉफ़ी हाउस में। वो कथा है कनॉट प्लेस में, कैसे एक दिन उन्हें सन स्ट्रोक आ गया था, बेहोश हो गए थे लगभग। फिर कोई पहचान का व्यक्ति गुजर रहा था, उनके सहयोग से होश में आए, और होश में आते ही फिर से उन्होंने ग्रंथों का वितरण आरम्भ कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण से हमें दिखाया क्या भाव होना चाहिए भक्तों में। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, उन्होंने भी भक्तों को आदेश दिया ग्रंथों को बांटो, और प्रभुपाद जी ने क्यों इस सेवा पर बल दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी के शब्दों में ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी ने एक पत्र में कहा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज बेटर देन द स्ट्रीट संकीर्तन। हम लोग जब ग्रंथों का वितरण करते हैं, ये हर सेवा से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महीना में जाते हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण सेवा है। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बाबा जी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। दिस बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज द एसेंस ऑफ आवर मिशन। एक और पत्र में प्रभुपाद जी ने कहा, ये जो ग्रंथों का वितरण है, ये सब सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण है। एक पत्र में प्रभुपाद जी ने कहा, इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि अगर कोई व्यक्ति एक श्लोक पढ़ ले तो अपने जीवन को सुधार सकता है। आगे जाके कहा, एक श्लोक ही नहीं, एक शब्द को भी पढ़ ले इन ग्रंथों में, एक शब्द, उसके अर्थ को समझ जाए तो वो अपने जीवन को सुधार सकता है। क्या पूरा पत्र पढ़ना चाहते हो? Every word, each and every word. Therefore we stress so much in the book distribution. Some of the other, if the book goes in one's hand, he will be benefited. बाबा जी कह रहे हैं, अगर ये ग्रंथ किसी के हाथ में ही पहुंच जाए, उसका लाभ है। अभी ये नहीं इसका अर्थ कि आप लोगों के ग्रंथों को हाथ में पहुंचाओ और फिर वो वापस कर दे। At least you will see, if you read one shloka, his life will be successful. एक श्लोक पढ़ने से जीवन सफल हो सकता है। If you read one shloka, one word, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एक शब्द भी कोई पढ़ ले ध्यान से, उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए बल दिया, क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा थी कि लोगों का उद्धार हो। तो आप कह सकते हो हमारे में वो भाव नहीं है,
हमारे में प्रहलाद महाराज का भाव नहीं है, हमारे में वासुदेव दत्ता का भाव नहीं है, तो सच है। हमारे में भक्ति विनोद ठाकुर का भाव नहीं है, पर अगर हम प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त हो सकती है। हमें भाव यही रखना है, हम हैं मूर्ख, हमारे में कोई योग्यता नहीं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे जालादूता में, जब उन्होंने देखा अमेरिका का वातावरण, देखा कि किस प्रकार लोग जुड़े हुए हैं गहराई के साथ इंद्रिय तृप्ति में, तो प्रभुपाद जी ने सोचा कौन सुनेगा मेरे संदेश को। आप मुझे ले तो आए हो, पर कौन सुनेगा इस संदेश को। तो आगे उन्होंने क्या कहा कि राधा रानी जी की असीम कृपा से हर कार्य सफल हो सकता है। तो हमारे में कोई योग्यता नहीं है। भगवान गीता में क्या कहते हैं, जो प्रयास करते हैं मुझे प्रसन्न करने के लिए, उनमें कुछ कमी भी हो तो उसको मैं क्या करता हूँ, दूर कर देता हूँ। तो भक्तों में कोई योग्यता नहीं है। अगर कोई भक्त सोचे मेरे में बहुत योग्यता है, बहुत गुण है, वो मूर्ख नंबर 1 है। अगर हम सोचेंगे हमारे में कोई योग्यता नहीं है, पर हम निर्भर हैं किस पर, संतों की, भगवान की कृपा के ऊपर, फिर आप सफलता प्राप्त कर सकोगे। तो ये जो हर साल ग्रंथों का मैराथन की सेवा होती है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये नहीं कि हम धन कमाएंगे, इसका उद्देश्य ये है कि किसी न किसी कारण लोग जुड़ेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे। कभी कभी हमारे भक्तों के मन में ये भाव आता है कोई पढ़ता तो है नहीं इन ग्रंथों को, और कोई लेता भी नहीं है। ये गलत बात है। कई लोग पढ़ते हैं, वो भी भाव आप भक्त कैसे बने, स्टैंड अप एंड से गिव अ माइक। ये एक उदाहरण है आपके सामने। I was traveling from my home to Faridabad. In a train, one devotee was distributing Bhagavad Gita. He was a foreign body. He was saying, if you read Bhagavad Gita, your eyesight will be good. You can see the things as they are. And when I heard this, I thought I will take. I was thinking. Speak in Hindi. मैं सोचा कि कब भगवत गीता दिखा के बोले कब आप ये पढ़ेंगे तो आपका आंख अच्छा दिखेगा, मतलब आंख अच्छा दिखेगा मतलब आप सब कुछ अच्छा देख सकते हैं क्या है। देन मैं सोचा कि मैं इस भगवत गीता को बांटना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। एक अंग्रेज इस भगवत गीता को प्रचार कर रहे हैं। देन मैं सोचा कितना भी बुक है मुझे दे दो। उसके पास एक भगवत गीता था, एक कृष्णा बुक था। सो कब कृष्णा बुक पढ़ के और भगवत गीता पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कंपनी में जाके प्रचार किया। देन मेरा HOD ने बोला आपने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया क्या? देन मैंने सोचा कि इसमें इस्कॉन कुछ है, कोई संस्था है ना। नेट में जाके सर्च किया। देन पता चला कि इस्कॉन क्या है, देन प्रभुपाद क्या है। देन मैं दिल्ली मंदिर आया। दिल्ली मंदिर आके भक्तों से तो इनका परिचय कैसे हुआ? गीता के द्वारा, जो कि किसी ने गाड़ी में बिताया। तो एक उदाहरण तो आपके सामने है, और अगर पूछा जाए तो कई और उदाहरण निकल आएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये विचार जो हमारे मन में आता है, कोई इन ग्रंथों को पढ़ता नहीं, किसी की रुचि नहीं है, ये गलत बात है। मैं जानता हूँ एक घटना जिसमें किसी ने 10 साल पहले गीता ली थी। 10 साल उसने गीता खोली भी नहीं, 10 साल बाद खोली। कोई दुर्घटना बीच गई थी, पढ़कर इतने प्रभावित हुए कि बाद में भक्त बन गए। तो अगर आज इस्कॉन संस्था के लाखों भक्त हैं,
उसका मूल कारण है इन ग्रंथों का प्रभाव। प्रभुपाद जी के ग्रंथ लगभग 90 भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। कई देशों में आप ग्रंथों को बिल्कुल बांट नहीं सकते, जैसे कजाकिस्तान, वहाँ ग्रंथों को बिल्कुल बांट नहीं सकते। पर हमारे कई भक्त हैं जो जब भी बांटते हैं जेल में जाते हैं, फिर निकल कर आकर फिर किताबें बांटते हैं। तो ये ग्रंथों का जो सेवा है, ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। प्रभुपाद इस्कॉन में एक मंत्र है, एक तो हरे कृष्ण मंत्र, एक और मंत्र है प्रीचिंग इज द एसेंस। सब प्रकार की सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेवा है प्रचार की। बुक्स आर द बेसिस। प्रचार आप करोगे तो क्या प्रचार करोगे? प्रभुपाद जी ने एक पत्र में लिखा किसी को, तुम्हारा 3 मिनट का प्रचार क्या करेगा? अब बोलोगे, सुनेगा, भूल जाएगा। अगर कोई ग्रंथ ले जाएगा, खुद पढ़ेगा, दूसरों को देगा पढ़ने को, और दूसरे भी प्रभावित हो सकते हैं। ये जो ग्रंथों के वेतन की सेवा है, ये सेवा सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। और आप भक्त कई सालों से मैराथन करते आ रहे हो। तो कई बार हम सोचते हैं इतने साल मैराथन कर लिया, अब कौन सुनेगा? कोई है ही नहीं, जाने के लिए कोई है ही नहीं। जितने जान पहचान थे सबको अप्रोच कर लिया। तो अगर आप प्रयास करोगे, ध्यान से परिश्रम करोगे, तो भगवान आपको बुद्धि देंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमने इतना प्रचार कर लिया है कि और गुंजाइश नहीं। तो इन ग्रंथों के द्वारा अज्ञानता दूर होती है। क्या कारण है? प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों के वेतन की सेवा पर बल दिया। केवल एक ही कारण, अज्ञानता दूर होती है। जब प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य अंतिम दिनों में इतना ठीक नहीं था, जब भी उन्होंने अनुवाद के कार्य को नहीं रोका, जब भी वो अनुवाद करते गए। और प्रभुपाद जी ने हमें ये भी कहा, एवरीथिंग यू नीड टू नो इज देयर इन माय बुक। जो भी तुम जानना चाहते हो वो पूरा ज्ञान इन ग्रंथों में है। इन ग्रंथों को ना ही हमने विचरण करना है, इनका हमें अध्ययन भी करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, उन्होंने दूसरे स्कंद का अनुवाद शुरू किया और कृष्णा बुक का अनुवाद शुरू किया। प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक छाप दी थी, पर उसकी छपाई के लिए कोई 20,000 पाउंड की जरूरत थी। तो उन दिनों में 20,000 पाउंड बहुत ज़्यादा रकम थी। और उन दिनों में अमेरिका में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। उसके बाद अपने 3 गृहस्थ भक्तों को, गुरुदास, मुकुंद और श्याम सुंदर, को इंग्लैंड भेजा प्रचार के लिए। और प्रचार के माध्यम से इन भक्तों ने बीटल्स को प्रभावित कर दिया था। तो बीटल थे उस समय पूरे विश्व के सबसे प्रसिद्ध रॉक ग्रुप था, रॉक ग्रुप। तो प्रभुपाद जी ढूंढ रहे थे किसी सज्जन को जो कृष्ण बुक की छपाई की कीमत दे। तो प्रभुपाद जी को जब सूचना मिली कि बीटल्स भक्त बन रहे हैं, और प्रभुपाद जी उन्हें मिल चुके थे जब प्रभुपाद जी लंदन में गए, तो प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर को पत्र लिखा, Why don't you ask George Harrison to pay for the printing of the Krishna book? श्याम सुंदर ने कहा, Prabhupada, George Harrison is a new devotee.
नया भक्त है, उसको मैं कहूँगा इतनी महंगी किताब छापो तो कहीं वो भाग नहीं जाए हम लोग से। तो प्रभुपाद जी कहा डोंट वरी जस्ट आस्क हिम। तो प्रभुपाद जी के कहने पर श्याम सुंदर ने हिम्मत करके जॉर्ज हैरिसन को पूछा, कहा कि प्रभुपाद जी चाहते हैं यू पब्लिश दिस बुक। जॉर्ज हैरिसन एकदम मान गया, एकदम, हालांकि वो नया भक्त था। जॉर्ज हैरिसन ने इसको की बहुत सेवा की और 6 कृष्ण बुक्स छप के आई थी जब 1970 में रथ यात्रा हो रही थी सैन फ्रांसिस्को में। प्रभुपाद जी ने 6 के 6 कॉपीज एकदम बांट दिए। एक समय प्रभुपाद जी के पास एक टीचिंग द लॉर्ड चैतन्य की एडवांस कॉपी आई थी, वो भी प्रभुपाद जी ने बांट दिया। तो प्रभुपाद जी ने हमेशा ये उदाहरण दिया कि इन ग्रंथों को हमें बांटना है। तो ये साल भी आप भक्तों से निवेदन है कि आप उत्साह से जुड़िए। मैंने ये उदाहरण आपको कई बार दिया है। एक दफ़ा बॉम्बे में एक बुक शॉप है बहुत बड़ी, इंटरनेशनल बुक हाउस। वहाँ मैंने 1976 में बहुत बड़ा डिस्प्ले का प्रबंध किया था, किताबों को डिस्प्ले करने के लिए। और 1 महीने में जितनी किताबें हमने सोचा था बिकेगी, नहीं बिकी। मैं प्रभुपाद जी के पास गया कह करके, हालांकि वी हैड विंडो डिस्प्ले, बुक रैक, ज़्यादा किताबें नहीं बिकी। तो प्रभुपाद जी ने कहा माई बुक्स आर सोल्ड बिकॉज ऑफ द एंथुसियाज्म ऑफ माई डिवोटीज। ये किताबें बिकती हैं भक्तों के उत्साह के कारण। तो रूपा गोस्वामी भी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य। तो हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं केवल ये सोचना कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं अच्छा भाव है, पर हमें उत्साहित होना चाहिए। क्यों नहीं? आप किसका संदेश दे रहे हो? परम भगवान का संदेश दे रहे हो। हमें उत्साहित होना चाहिए। उत्साहित हो गए तो आप दूसरों को भी प्रभावित कर सकोगे। एक समय एक अमेरिकन भक्त था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप भक्त कैसे बने। वो संगठन लीडर था। तो उसने मुझे कहा कि एक समय उसका एक मित्र उसको गाड़ी में लिफ्ट दे रहा था और पीछे उसने देखा भगवद गीता यथारूप इंग्लिश में एज इट इज। तो उसने अपने मित्र से पूछा कैन आई बोरो दैट बुक, मैं जहाँ मांग सकता हूँ। तो उसके मित्र ने कहा वाई बोरो, टेक इट, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इट। कहा तुम मांगना क्यों चाहते हो, ले लो, मैं इसमें कोई रुचि नहीं। तो उसके दोस्त ने पूछा अगर रुचि नहीं है तो किताब तुमने खरीदी क्यों? तो उसने कहा एक हरे कृष्ण का संत मुझे मिला था, बड़ा प्योर दिख रहा था चेहरे से और बहुत ही उत्साहित था। इतना उत्साहित था कि मैं नहीं बोल सका। तो उसने किताब ले ली। 3 महीने में गाड़ी में रखी, खोला भी नहीं किसी ने। 3 महीने बाद एक मित्र ने मांगी, वो भक्त बन गया। तो अगर आप उत्साहित हो गए तो जो व्यक्ति नहीं लेना चाहता वो भी ले लेगा। और प्रभुपाद जी ने ये भी कहा प्योरिटी इज द फोर्स। तो कई बार भक्त पूछते हैं प्योरिटी इज द फोर्स का क्या मतलब कि मैराथन कर रहे हैं हम, तो हमें अच्छी साधना भी रखनी है। ये नहीं थी कि मैराथन के बहाने साधना को कमजोर बना देना या जाप नहीं करना इत्यादि। अगर आप अच्छी साधना रखोगे और उत्साह के साथ प्रचार करोगे तो बिना शंका के सफलता प्राप्त कर सकोगे। तो इन 2 चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना।
तो मेरा ये निवेदन था कि हर साल आप भक्त प्रयास करते हो, आपका दिल्ली मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये साल भी मैराथन हम जल्दी शुरू कर रहे हैं और आप सब जुड़िए इसमें मैराथन का ये अर्थ नहीं कि सिर्फ जो ब्रह्मचारी हैं या पीले कपड़े में हैं वो जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। हम सबको जाना चाहे, हम सबको कृपा चाहिए कि नहीं। भगवान देखते हैं ये भक्त प्रयास कर रहा है मेरे संदेश को पहुंचाने के लिए। अगर आप में कोई गुण नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, तो भी वो प्राप्त हो जाएगी। मैंने सारे विश्व में अनुभव किया है कि कई भक्त जिनका कोई अभ्यास नहीं था, कई बार भक्त सोचते हैं मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करता, वो भी इतने बड़े प्रचारक बन जाते हैं। और विदेशों में हमारे भक्त प्रचार कर रहे हैं बड़ी कठिन परिस्थिति में। एक तो सर्दी का मौसम है, दूसरा सरकार का विरोध, पुलिस समाज का विरोध। जब भी वो जाते हैं ग्रंथों को बांटने के लिए, तो ये साल भी काफ़ी अच्छी योजना है ग्रंथों को बांटने के लिए। कितना 3.5 लाख, लगभग 4 लाख गीता बांटने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हर भक्त, हर मंदिर से जुड़ा हुआ भक्त, चाहे कांग्रेगेशन भक्त हो और चाहे मंदिर के भक्त हो जिनकी प्रचार की सेवा नहीं है, कई भक्तों की सेवा है मैनेजमेंट या कुछ, पर हर भक्त को प्रचार के लिए समय निकालना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने मैराथन के विषय में कहा लेस स्लीपिंग लेस ईटिंग। अगर हमें कृपा चाहिए तो क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। आप सोचोगे हर साल मैराथन आ जाता है, काम फंस गए। पर ये एक रूप से भगवान की खास कृपा है। माया का मैराथन पूरे साल चलता है कि नहीं? कि नहीं चलता? माया कभी छुट्टी लेती है? तो भक्तों में भी ये उत्साह होना चाहिए। आप ये मत सोचिए हम सबके पास पहुंच चुके हैं, कोई दिल्ली शहर में बचा नहीं, करोड़ों लोग बचे हैं। आप सब इस मैराथन में जुड़िए और ग्रंथों को बांटिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि ग्रंथों के वितरण की सेवा और 10,000 साल चलेगी। और उसके पश्चात कलयुग इतना गहरा हो जाएगा कि भगवान का नाम लोगे तो आपका कत्ल हो जाएगा। तो ये प्रचार की सेवा सिर्फ और थोड़े समय के लिए है। कितने सालों के लिए? 10,000 साल। सब जुड़ोगे उत्साह के साथ? सब? कोई डरा तो नहीं है? चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे, वो अनेक भक्त जुड़े थे उस सेवा में, और सबका कार्य था मैल को इकट्ठा करना। तो चैतन्य महाप्रभु हर टीम के पास जा रहे थे देखने के लिए किसने कितनी मैल इकट्ठी की है। और अगर किसी ने कम मैल इकट्ठी की थी, महाप्रभु जो ज़्यादा सफल थे उनको क्या कहते थे? इनको सिखाओ और अच्छी तरह कैसे करने के लिए। इसी प्रकार हमारी संस्था में भी कई भक्त हैं जिनका बड़ा अच्छा अभ्यास है ग्रंथों के वितरण की सेवा में। कई हैं जो नए हैं,
आराम कर रहे हैं, जिनका अभ्यास है उन्हें समय देना चाहिए, और जो कमज़ोर हैं उनको भी मजबूत बना देना चाहिए। ये हमारी सेवा है। इस प्रकार परंपरा का ज्ञान आगे बढ़ता है। अब सब इस मैराथन में जुड़िए और हर साल के समान प्रयास करो गीता बांटने के लिए। तो गीता पढ़ेंगे और जीवन को सुधारेंगे। कई बार लोग मुझे पूछते हैं आपके दिल्ली में इतने भक्त कैसे हैं? 15-20 हज़ार भक्त हैं, 12 मंदिर हैं, एक समय तो कुछ भी नहीं था। ये सब है ग्रंथों के वितरण का प्रभाव। हमें कई बार लगता है नहीं कोई नहीं आ रहा, कोई भक्त नहीं बन रहा ग्रंथों को पढ़कर, पर आपको कुछ अंदाजा नहीं वहाँ प्रभु जी की शक्ति कैसे काम करती है। भगवान गीता के 18वें अध्याय में क्या कहते हैं? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? तो आप में से कौन कौन प्रिय बनना चाहते भगवान? सब जुड़िए इस मैराथन में। जुड़ोगे? और भूलना मत, पवित्रता इज अ फोर्स। अच्छी साधना रखो और उत्साहित हो, और सारे भक्तों को जुड़ना है। ये नहीं कि सिर्फ ब्रह्मचारी की सेवा है। जो मैनेजमेंट में हैं, जो पुजारी हैं, जो रसोई बनाते हैं, सबको मैराथन की सेवा में जुड़ना चाहिए। यू ऑल्सो। नो एक्सक्यूज। कई बार हम लोग मैनेजमेंट में इतने व्यस्त हो जाते हैं, कहते हैं ओ सॉरी नो टाइम। जो मैनेजमेंट में है उन्हें सबसे पहले जाना चाहिए, सबसे पहले प्रचार की सेवा में जाना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता था मोहन बाबू 2 मिनट बोलें, और मधुसुंदर जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। तो सब जुड़ोगे मैराथन में? कौन कौन जुड़ेगा? हरे कृष्णा। धन्यवाद। गुरु महाराज ने काफ़ी कुछ पुस्तक वितरण के बारे में बताया, और काफ़ी एग्जाम्पल दिए कि लोग कैसे भक्त बने। एक बार मैं भी एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत परेशान, हताश बैठा हुआ था, तो बड़ा दुखी था। तो वो प्लानिंग कर रहा था कि कैसे मतलब मैं शरीर छोड़ूं, आत्महत्या करूं। हाँ, तो वो उनके पास एक व्यक्ति आया जो कि बहुत उनसे प्रेम करते थे। तो वो आया तो उसने बोला कि हाँ क्या हुआ बेटा, आज बहुत परेशान दिख रहे हो। बोला हाँ मैं बहुत परेशान हूँ आज। तो बोला कि ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप मुझे अपनी परेशानी भी नहीं बताना चाहते हो, आप इतने परेशान हो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन देता हूँ। मैं हरिद्वार गया था तो ये गीता खरीद के लाया, तो आप ये गीता पढ़ो, आपको सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि इसमें गीता में क्या सॉल्यूशन मिलेगा, इतना फेथ भी नहीं था भगवान के ऊपर। लेकिन उनके कहने पर उसने पढ़ना शुरू किया, और पढ़ना शुरू किया तो वो इतना उनको अच्छा लगा, उनको लगा कि वास्तव में ये सारी मेरी समस्याओं का हल है। तो फिर धीरे धीरे पढ़ते गए, और फिर इस्कॉन के भक्तों के संपर्क में आए, और फिर जो है मंदिर में वो फुल टाइम डिवोटी बन गए। उनके भाई भी फुल टाइम डिवोटी बने, उनकी माता जी ने भी दीक्षा ली, पूरे खानदान भक्त बन गए। वही भक्त आज आपके सामने है, मधुसुंदर। कुछ 2 हफ्ते पहले सिंध में इस्कॉन के भक्तों का हिंदू कम्युनिटी के साथ एक प्रोग्राम था, सिंध पाकिस्तान में, और हमारे मुख्य अतिथि उस प्रोग्राम में थे सिंध के गवर्नर। तो हमने
उर्दू गीता छापी थी, इनके गवर्नर को भी दिया हमारे भक्तों ने। उसने कहा मैं जरूर पढ़ूंगा। और आजकल प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अनुवाद अरेबिक भाषाओं में भी हो रहा है और काफ़ी बुक डिस्ट्रीब्यूशन अरेबिक भाषा में भी हो रहा है। सो जैसा कि गुरु महाराज ने बताया कि जैसे दनामी बुद्धि योगम, तो भगवान जो है हमें बुद्धि देते हैं। और वास्तव में बहुत बहुत लोग बचे हुए हैं जिनके पास ग्रंथ नहीं पहुंचे हैं। जैसा महाराज बोल रहे थे, हम लोगों को लगता है कि हमने सबको दे दिया, लेकिन हम लोग देखिए हर रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, लेकिन हर रोज ग्रंथ बांटते हैं, हर रोज लोग बुक्स लेते हैं। ये कमी हमारी है कि हमें लगता है, हम आलस के कारण बैठ जाते हैं, हमें लगता है अरे नहीं नहीं कौन लेगा क्या लेगा, तो फिर हम लोग आलस के कारण जो है हम लोग निकलते नहीं हैं। तो ये हमारी कमी है, लेकिन लेने वालों की कमी नहीं है। लेने वाले हमेशा, श्रील प्रभुपाद ने बोला कि ये पुस्तक वितरण शाश्वत है, तुम्हें ग्राहक हमेशा मिलेंगे। तो बजा लो हाँ? तो श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों पे हमें विश्वास करना चाहिए। तो ददामी बुद्धि योगम है, जैसा कि महाराज बता रहे थे कि ददामी बुद्धि योगम, भगवान जो है बुद्धि देते हैं कि हमने कैसे ग्रंथों का वितरण करें। है एक घटना है छोटी सी, हम लोग हैदराबाद में पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो वहां पे हमारे एक भक्त था, लव है एक पीला भक्त ब्रह्मचारी था, तो वो जो है उसको ग्रंथ दे रहा था। तो आप समझ जाए कि वो कौन व्यक्ति था, आप समझ जाइए। तो उसको दे रहे थे किताब, तो वो ले नहीं रहा था, कहता नहीं नहीं मैं कुछ लैंग्वेज जानता नहीं है, मैंने सिर्फ पंजाबी आती है, मैं हिंदी भी नहीं जानता, इंग्लिश भी नहीं जानता, तेलुगु भी नहीं जानता। तो बड़ी समस्या हो गई कि यार कैसे ले। तो फिर मैंने बोला क्या हुआ, कह रहे बहू जी एक किताब तो लेना चाहते हैं, पैसे भी देना चाहते हैं, लेकिन कह रहे मैं लैंग्वेज ही नहीं जानता, तो मैं कैसे लूँगा। तो मैंने बोला कि शाह जी तुम्हें इंग्लिश आती है, कहता नहीं इंग्लिश नहीं आती है। मैंने पूछा तुम कितनी इंग्लिश आती है, कहता बिल्कुल नहीं आती है। मैं कहा चलो ए तो जेड तो आती है, कहता हाँ ए तो जेड तो आती है। तो मैं कहा गीता देखो ए की लिखा है, कहता BHAG सारा ने पढ़ा। मैं क्या देखो ए तो जेड तो होते हैं कुछ, कहना नहीं होते नहीं है। तो मैं क्या सारी गीता देख लो ए तो जेड ही है, कहना हाँ यार है तो सच्ची बात है। मैं तो इंग्लिश आती है यार, कहना यार मेरे पता ही नहीं थी यार। तो वो बड़ा खुशी से ले गया। अब वो क्या पढ़ेगा उसमें ए से जेड, जो भी पढ़ेगा उसने ले लिया। हाँ तो ये है भगवान जो है बुद्धि देते हैं कि कैसे जो है ग्रंथ बांटा जाए। हाँ ऐसे ही एक बार हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो वो हरिनाम हो रहा था, हरिनाम चल रहा था, तो हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो एक आए, आप समझ जाओ, हाँ तो वो आए, तो उन्होंने जो है बोला कि गाल सुन ए की हो रहा है। मैं क्या यार अब मैं कहूँगा हरिनाम हो रहा है तो उन्हें समझ नहीं आएगी। मैं ऐसा जी है ना नागपंचमी है ना, तो असी ना ग्रंथ बांट रहे हैं। तो उन्होंने लगा कि यार नागों के ग्रंथ बांट रहे हैं, उन्हें परेगा उसे जाके इसके अंदर नाग ना हो गई, उन्हें परेगा। मैं नहीं भाई वो गल नहीं यार, कहता नहीं तू छोड़ यार, फटाफट उसने खिड़की बंद करी भाग गया। अब फिर जो है चला गया, थोड़ी देर बाद उसको वहम हो गया, उन्हें लगा कि यार मैं नागों का अपमान कर दिया। तो वापस आ गया, तो वो ढूंढ रहा था, कहता कि वो भक्त कहाँ गया। तो उसने देखा, कहता है गाल सुनो। तो मिला, तो उन्हें बोला साजी 100 रुपये रख लो। मैं 100 रुपये के वास्ते, कहना नागा तो दूध वास्ते, नागा ने दूध पिला देना। मैं साजी दो दिन सुनो है ना, ऐसी गीता बन रहे हैं, गीता देती जा रहे हैं। अच्छा तुम गीता दे रहे हो, हाँ आओ यार, फिर ने गीता ले ली। तो मैं ठीक है भाजी, तुम कभी साढ़े मंदिर आओ है, अपना ना नंबर दे दो। कहता ना नंबर वो कहते वास्ते, मैंने जैसे प्रोग्राम होंगे तो बुलावांगे। और फिर वहम पड़ गया उसको, उन्हें सोचा ना मेरा नाग और नंबर ना ये नागों के आगे बोल देगा। कहता वो नहीं मैं तो ना नंबर नहीं देगा। और जो है फटाफट उसने खिड़की बंद कर फिर भाग गया। तो इस तरीके से जो है बहुत घटनाएं घटती हैं। मधुसूदन प्रभु उनके भक्तों के साथ पूरा साल जाते हैं।
कई बार भक्त में से प्रश्न पूछते हैं, हरिनाम में जाना ज़्यादा जरूरी है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में? तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया था। Regarding Sankirtan and book distribution is also chanting. Anyone who reads the books, that is also chanting and hearing. Why distinguish between chanting and book distribution? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, संकीर्तन और ग्रंथों के वितरण की सेवा में दोनों बराबर हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, that is also chanting. बुक डिस्ट्रीब्यूशन इन किताबों में है क्या? ज्ञान इनाम के विषय में। तो भक्तों को ये नहीं लगना चाहिए हाँ हरिनाम करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली है बुक डिस्ट्रीब्यूशन से। पापा ने स्पष्ट कहा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो चैंटिंग। ओके, और बोलोगे? जल्दी बोलो फिर। ओके, सो जो है ये हम लोग वास्तव में जैसे महाराज बोल रहे थे कि उत्साह तो बहुत हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए है। अगर हम लोग उत्साही होंगे तो लेने वाला भी उत्साही होगा। हम लोग देखते हैं कि हमारा ही उत्साह ठंडा पड़ा हुआ है, बड़ी मुश्किल से हम लोग जो है विचार कार्य में धक्का लगा के निकलते हैं और जो है वहाँ पर भी हो जाते हैं तो हम लोग ठंडे पड़ जाते हैं। इसलिए जो है हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। हाँ, अगर हम लोग उत्साही होंगे तो सामने लेने वाला भी उत्साही हो जाएगा। हम देखते हैं कि हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं तो जो कई भक्त लोग दे नहीं पाते हैं, लेकिन वही हम लोग जो है वही बात बोलते हैं, वही शब्द बोलते हैं उत्साह से, तो सामने वाला ले लेता है। तो बहुत जो है हमें उत्साही होना चाहिए पुस्तक देने के लिए। एक बार एक भक्त जो है वो एक जो है हम लोग पंजाब में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो एक भक्त बोल रहा था, एक सामने वाले को बोला था कि ग्रंथ ले लो ले लो ले लो, तो वो ले नहीं रहा था। तो मैंने बोला क्या हुआ? कह रहा प्रभु जी ये ले नहीं रहा है। मैंने बोला चलो मैं देता हूँ। कहता प्रभु जी आपने जो भी क्लास में बताया ना मैंने सब बोल दिया, ये फिर भी नहीं ले रहा है। हाँ, कोई जरूरत नहीं इसको बोलने की। मैं बोला ठीक है मैं जाता हूँ एक बार। तो मैंने उसको बोला हरे कृष्णा, कहते हरे कृष्णा। मैंने बोला आपके लुधियाना में इतनी बड़ी रथ यात्रा हो रही है? बोले हाँ ये बात तो सही है। तो मैंने आज ठाकुर जी की सब सेवा कर रहे हैं, आपसे हम थोड़ा 100 रुपये दान ले सकते हैं? कहता हाँ क्यों नहीं सर। उन्होंने 100 रुपये दिया। मैंने बोला हम आप धन्यवाद, आपका 100 रुपये दिया ना, अब हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, ये आपके लिए गीता है। तो भक्त बोला यार बाबू जी ये कैसे हो गया 100 रुपये हैं? आपने पहले ये तो बताया नहीं कि पहले आप किसी से दान मांग लो। मैंने बोला गुरु हर चीज सबको नहीं बताता। जब तुम्हारे जैसा चेला चैलेंज करता है ना तब गुरु दिखाता है। मोहन बाबा बोले कुछ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर प्रभु, और उत्साह बढ़ाया अपने भक्तों का। तो जो भी है मतलब ये उत्साह जो इंस्पिरेशन हमें गुरु महाराज से मिल रहा है, और महाराज का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहेंगे सब भक्त लोग। तो और उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के आशीर्वाद से हम ये संकीर्तन करते हैं हर साल, और आप सब भक्त लोग मिलजुल के करते हैं तो काफ़ी ये प्रयास सफल होता है। एक हमारे लॉस एंजलिस टेम्पल के प्रेसिडेंट आए थे सुभाष प्रभु, आपने मिले होंगे उनको, अभी पिछले साल आए थे यहाँ पे सुभाष प्रभु, और सबसे लंबे टेम्पल प्रेसिडेंट हैं शुरू से, बहुत 80 से हैं शायद वहाँ पर लॉस एंजलिस टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल हैं। तो उन्होंने एक इंसिडेंट बताया था कि मॉर्निंग वॉक में एक बार श्रील प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स के साथ जा रहे थे, और उस समय एलए में, तो उस समय एक डिसाइपल ने प्रभुपाद से कुछ कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन पूछा था रासलीला के बारे में और समथिंग रिलेटेड विद गोपीज एंड ऑल। तो ये जब प्रभुपाद से क्वेश्चन पूछा तो प्रभुपाद उस पूरे मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद ग्रेव रहे, चुप रहे, कोई आंसर नहीं दिया। और प्रभुपाद अपना जैसे कि इतना अच्छा एक्सप्रेशन प्रकट नहीं किया कि मतलब प्रभुपाद खुश नहीं लग रहे थे, और पूरे मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद कुछ बोले नहीं। और नेक्स्ट डे एक और डिसाइपल आए, उन्होंने प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद yesterday in the airport I distributed this number of books, कि मैंने इतनी इतनी किताबें बांटी। सुभाष प्रभु ने बताया था कि मैंने इतनी इतनी किताबें बांटी प्रभुपाद कल एयरपोर्ट में। प्रभुपाद ने एकदम से मुड़ के कहा सी ही इज माई डिसाइपल। प्रभुपाद ने कहा ही इज माई डिसाइपल।
तो कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय है ये ग्रंथों का वितरण। इनफैक्ट कल भी एक कन्वर्सेशन ही पढ़ा था मैंने श्रील प्रभुपाद जी का नस्तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ जू टेम्पल में, जिसमें महाराज प्रभुपाद जी को कह रहे हैं कि प्रभुपाद बहुत स्ट्रेस है मेरे ऊपर, बहुत लोड है सेवा का और काफ़ी एंग्जाइटी रहती है। और प्रभुपाद ने कहा आई एम ऑल्सो इन एंग्जाइटी, आई एम ऑल्सो इन स्ट्रेस। फिर उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आई एम स्ट्रगलिंग टू चैंट, और चैंटिंग में भी बड़ी डिफिकल्टी हो रही है, एंग्जाइटी बनी रहती है कि चैंटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभुपाद ने कहा दिस एंग्जाइटी, because you are not able to chant, this anxiety that you are not able to chant, this will take you back home, back to Godhead. Not that your chanting will not take you back home, back to God, but this anxiety that you are not able to chant, that will take you back home, back to God. कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद ने यही बताना चाहा कि जो एंग्जाइटी जब हम लेते हैं किसी सेवा की, जब लोड लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो उस समय बहुत कृपा हमें मिलती है। इनफैक्ट ये जो दामोदर लीला का भी एक मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशन हमने सुना था, तो प्रभुपाद पूछ रहे हैं क्वेश्चन एक डिसाइपल से, यू नो व्हाई यशोदा इज मदर ऑफ कृष्ण? बिकॉज शी हैज परचेज एंग्जाइटी फॉर कृष्ण। तो सिमिलरली ये ग्रंथों का वितरण भी एक एंग्जाइटी है। जब हम भारी मात्रा में ग्रंथों को मंगवाते हैं, लेते हैं, और हमें पता नहीं होता है कि कौन कस्टमर है हमारा, नहीं, कितना बड़ा रिस्क है। देखिए हम इतने सारे हमने गीता मंगवा ली है और करोड़ों रुपए की गीता है, और हमें अब कुछ नहीं पता है कि कौन कस्टमर है हमारा। तो वी आर टोटली डिपेंडिंग ऑन गुरु एंड कृष्ण। तो इस तरह से हम लोग जब एंग्जाइटी लेते हैं, वॉलंटरली एंग्जाइटी लेते हैं, सो नेचुरली वी गेट लॉट ऑफ मर्सी, और उससे हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है एक्सेलरेट हो जाता है। तो यही बताना चाह रहे थे। इनफैक्ट एक बार उन्होंने ये भी बताया था कि LA एयरपोर्ट पे जो वो डिस्प्यूट कर रहे थे, और मोहम्मद अली उस समय बॉक्सिंग चैंपियन थे, वर्ल्ड चैंपियन थे, एंड यूज्ड टू से दैट आई एम द ग्रेटेस्ट। तो उनको ये गीता दिखाई, भगवत गीता दिखाया, और प्रभुपाद का फोटो जब देखा मोहम्मद अली ने कहा कि आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट, एक्चुअली ही इज द ग्रेटेस्ट। प्रभुपाद को देख के बोला, मोहम्मद अली ने बोला। तो कितने लोगों का देखिए लाभ मिल रहा है, कोई बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, सबको ये लाभ मिलता है प्रभुपाद जी बुक्स का। और कोई जैसे महाराज कह रहे थे कि निश्चित रूप से जब बुक्स लेते हैं तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई भक्त बनता ही है, लेकिन ये जरूर निश्चित है, कोई भक्त बने ना बने, अगर आप उत्साहित होकर ग्रंथों का वितरण करेंगे तो निश्चित रूप से आप जरूर भक्त बन जाएंगे। तो हमें अपनी भी चिंता होनी चाहिए तो दूसरे भक्त बने नहीं बने उसकी बहुत चिंता है, वो भी ठीक है, लेकिन ग्रंथों के वितरण से क्या होगा, कम से कम क्या होगा, हम जरूर भक्त बनने लगेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप सब कृपा करके इसमें सहयोग दीजिए, पार्टिसिपेट करिए। और ग्रंथ आ चुके हैं और आज ही आप बुक्स ले सकते हैं, और जैसे ही कार्तिक समाप्त होगा उसके अगले दिन ही आप शुरू कर दीजिए। हमारे जो गोपी भाव प्रभु हैं PPT डिवोटीज के साथ जा रहे हैं 2 महीने की यात्रा में, और उनके लिए भी आप सब प्रार्थना करिए, और महाराज भी आशीर्वाद उनको देंगे, और वो भी उत्साहित होकर ग्रंथों का वितरण करेंगे। हमारे पास एक मधुसुंदर प्रभु का टीम है, एक सुंदर माधव प्रभु का टीम है, और एक गोपी भाव प्रभु के साथ टीम है। तो सब भक्त लोग उत्साहित है। और इसके अलावा हमारा जो स्ट्रेंथ है वो हमारा कंग्रीगेशन है। हर साल जो हमारा कंग्रीगेशन है, हमारे जो टोटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे कंग्रीगेशन डिवोटीज का है। कंग्रीगेशन हमारा बैकबोन है हमारे मूवमेंट का। जयपता का महाराज ने बताया था कि मॉन्ट्रियल में एक बार मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद जा रहे थे, और प्रभुपाद ने चर्च की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन फ्यूचर our temples may not be full with the devotees, but outside we will have thousands and thousands of devotees. तो कहने का मतलब है कि जितना अधिक लोगों को हम जोड़ेंगे उतना अधिक हम लोग सफल होंगे। तो इस वजह से आज पिछले साल भी लगभग 3000 भक्तों ने भाग लिया था। गोपेश्वर प्रभु फरीदाबाद में बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, और वहाँ पे हालांकि मंदिर में बहुत अधिक ब्रह्मचारी नहीं है, 4 या 5 ब्रह्मचारी हैं इंक्लूडिंग पुजारीज, लेकिन उनका स्ट्रेंथ है कंग्रीगेशन। तो अभी संडे को हमने प्लेजिंग कराया था, लगभग 1,40,000 गीता प्लेज किया है, एंड दिस इज 99.9% प्लेजिंग बाय द कंग्रीगेशन, 99.9%। और 1,40,000 प्लेज करते हैं तो हर बार 1 लाख तक तो पहुंच ही जाते हैं, कई बार 1.25 लाख तक भी करते हैं। सो दे आर वेरी एंथुसियास्टिक। तो हमारा ये भी एक मतलब बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, और हम चाहते हैं अधिक से अधिक लोग जुड़े, और हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें।
जितना अधिक हम लोगों को जोड़ेंगे इसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, उतना हम सक्सेसफुल होंगे। ये सीक्रेट है इसका। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं। हरे कृष्ण। थैंक यू। The Faridabad devotees are a good example. Thank you. हरे कृष्णा। आज का जो चैतन्य चरितामृत का प्यार था, जिसमें कि श्री चैतन्य चिंता कर रहे हैं कि इन यवनों और म्लेच्छों का कैसे उद्धार होगा, कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो उस समय वास्तव में वो उपाय नहीं था, लेकिन श्री चैतन्य की कृपा से वो उपाय मतलब जो हुआ है, जो टेक्नोलॉजी आई है किताब छपने की, तो वो जैसे ही टेक्नोलॉजी किताब छापने की जो शुरू हुई, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने शुरू कर दिया उस कार्य को, उसका उपयोग किया भगवान के संदेश का जो है फैलाने के लिए। तो वास्तव में असली जो उपयोग है इस टेक्नोलॉजी का, कि जो किताब की छपाई हो रही है, वो भगवान के संदेश की प्रचार का है वास्तव में उपयोग। लेकिन लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, माया का संदेश फैला रहे हैं। तो लोग माया का संदेश तो बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, लेकिन कृष्ण का जो संदेश है वास्तव में उसको फैलाने के लिए ही ये टेक्नोलॉजी है वास्तव में। हरे कृष्ण। श्याम कन्हैया की आंखें ट्रांसनेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की। हाँ, राकेश हियर। राकेश, where is Rakesh? Where is Dr. Hanuman? Where is he? He and Mohan Rupa, the world's #1 team. Yes. Hare Krishna. I would like to thank Guru Maharaj always for giving us inspiration. महाराज इतना देते हैं उत्साह, और महाराज की प्रभाव से हम लोग प्रयास करते हैं और बहुत लोग गीता ले रहे हैं। अभी इतनी बड़ी मार्केट है, मेरे ख्याल से हमने हार्डली टैप किया 1%। 99% पीपल डोंट हैव गीतास। लोग गाड़ी ले रहे हैं, बेंटली, BMW, एक गाड़ी लेते हैं 8 करोड़ की। So if you can convince him to sponsor 8 lakh Gitas or 10 lakh Gitas, we can achieve a target. So पूरा इतना पैसा है, हम आज के आशीर्वाद से हम प्रयास करें ताकि पैसा लग जाए भगवान की सेवा में, and they get Gitas. हरे कृष्णा। आप लोग ये मत सोचना कि GST के कारण लोग गीता नहीं खरीदेंगे। आपका जो उत्साह है उसमें GST से ज्यादा शक्ति है। हरे कृष्ण। सब कन्हैया की आंखें। गौर ब्रह्मानंद।